फर्स्ट बर्ड नाम कहाँ से आया? तो व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट बर्ड आइडिया वाज टू हैव अ टी ब्रांड. अगर मैं बड़े ब्रांड के साथ उस टाइम में प्राइस से फाइट करता मैं सर्वाइव नहीं करता था. मेरा जो बेस्ट सेलर है दैट इज लाकाडॉन टर्मरिक. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीमियम टर्मरिक ऑफ इंडिया. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से बीज जाके नेक्टर्स ले रहे हैं जिस प्लांट से ना, वो प्लांट्स कैसे सॉइल पे है, वो सॉइल कैसा है, वो सॉइल ही अगर कॉन्टामिनेटेड है. ये एक अलग D2C की ब्यूटी है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. उसके वजह से आई हैड सर्टेन लॉसेस. मुझे अपना ऑफिस बंद करना पड़ा. मेरा दिन में पूरा सीजन 3 तक का जो सफर था वो कैसा था? पूरा लोगो चेंज किया, ब्रांडिंग चेंज किया, अपनी मदर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लेके आया उसमें. रेवेन्यू डबल हुआ. सीजन 3 में दोबारा अप्लाई किया गए. लेकिन सारे प्रोसेस क्लियर हुए. शूट में भी गए, डील भी मिली. वो जिद बहुत जरूरी है और वो जिद ही आपको आगे लेके जाती है. Welcome back to another exciting episode of the Collaborative Canvas. Today we have a very special guest. Someone who has not only made a mark in the organic and wellness space but has also been recognized on Shark Tank India Season 3. Joining us is Mitresh Sharma, the visionary founder of First Bird Organics, a brand built on the foundation of the purity, trust and excellence. From herbal teas to single origin spices and organic honey, First Bird Organics brings nature's authentic goodness straight to your doorstep. Mitresh started this journey alongside his mother with a mission to provide healthier lifestyle choices to the masses, and his expertise in the e-commerce, Amazon, Flipkart optimization and scaling through digital tools has played a pivotal role in building a thriving D2C brand. Today, we'll deep dive into his entrepreneurial journey, the challenges of building a D2C brand in India, and his insights in scaling this into the competitive market. But before that, if you haven't already, make sure to subscribe to our podcast on YouTube and Spotify so you never miss an inspiring conversations with the industry leaders. And let's go back to the conversation. Mitresh, welcome to the Collaborative Canvas. Hello, hi. Thank you for joining us on this conversation, because I always tend to bring people to talk about how they have shaped their own career and killed that life of doing work as an employee. So what inspired you to start this brand, other than the fact that I know that you drive so my journey, I mean, almost had a similar kind of story. Back in 2013-14, I was working in a Korean company. It was a digital marketing agency. So the company I was working in shut down. So in my case, it was no choice. So you start, when you have either you have so many options or you have no choice. So I had no choice but to start with. So my first, venture into entrepreneurship was Viral Wave Media. When this company shut down, I, along with one of my colleague, started Viral Wave, and we started pitching local restaurants. And digital marketing at that point in time was very new. And लोग समझते भी नहीं थे क्या है क्या नहीं है. 2 साल हम लोगों ने वायरल वेब को रन किया. आफ्टर दैट आई थॉट कि अब कुछ फिजिकल SKU होना चाहिए विच आई कैन सेल ऑनलाइन, बिंग आई हैव सर्टेन डिजिटल स्किल्स विच कैन बी यूज्ड. तो वहाँ पे वो अलाइनमेंट नहीं था. फिर मुझे अपने कलीग्स के साथ में फाइनली आई हैड टू क्विट वायरल वेव, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड फर्स्ट बर्ड इन 2017. सो बट व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट बर्ड आई हैड नो क्लू कि मुझे फर्स्ट बर्ड ही क्यों करना है, मुझे प्रोडक्ट्स ही क्यों चूज करने हैं. उसकी टोटली एक डिफरेंट स्टोरी है. उस पर हम आएंगे, बट एक बार ये बताइए कि ये फर्स्ट बर्ड नाम कहाँ से आया? तो व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट बर्ड आइडिया वाज टू हैव अ टी ब्रांड, एंड कम्प्लीटली फर्स्ट फ्लश टीज जो प्रीमियम क्वालिटीज होती हैं, एक्सपोर्ट होता है. जब आप टी को स्टडी करते हो ना, तो टी में 2 बर्ड्स और एक लीफ होता है, राइट. एंड माई कॉन्सेप्ट वाज कि हम लोग फर्स्ट फ्लश टीज लेके आएंगे जो प्रीमियम होगा. तो यहाँ से फर्स्ट बर्ड हम लोग लेके आए थे, क्योंकि इट वाज अ टी नेम इनिशियली. बाद में वी थॉट नहीं, वी नीड टू ऐड मोर एंड मोर SKUs. So this is how today it became First Bird Organics. But D2C brand itself is a very dynamic industry altogether, और उसके consumers को पकड़ना भी मतलब एक अच्छा competitive environment है. और टी या और भी ऑर्गेनिक चीजें जो आ रही हैं वो अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुई हैं कि आपको ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, आपको ये चाहिए. तो आपने अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई किया और क्या स्ट्रैटेजीज लगाई? व्हेन आई स्टार्टेड, उस समय Amazon वाज आल्सो वेरी न्यू. आई नॉट से दैट बहुत नया था, लेकिन
इट वाज न्यू. वी डिडंट हैव दिस मेनी मार्केट प्लेसेस. क्विक कॉमर्स नहीं था, जियो मार्ट नहीं था, फ्लिपकार्ट भी बहुत ही वैसे स्टेज पे था. मैंने अपनी वेबसाइट से भी शुरू नहीं किया था, मैंने स्टार्ट मार्केट प्लेस से ही किया था. अच्छा. तो इनिशियली माई कंप्लीट स्ट्रैटेजी वाज कि आई विल नॉट फाइट विथ बिग मासी ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. वी विल गिव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स विथ अफोर्डेबल प्रीमियम प्राइसिंग. तो मेरा एक सेट ऑफ ऑडियंस, एक सेट ऑफ कंज्यूमर खुद बना जो मेरे लिए रिपीट परचेज बन के आया. अगर मैं बड़े ब्रांड के साथ उस टाइम में प्राइस से फाइट करता, मैं सर्वाइव नहीं कर पाता. Exactly. आई कुड हैव बीन आउट विद इन अ मंथ और 2 months, 6 months. सो आइडिया वाज कि अब मुझे पता है कि जब मेरे पास पैसे नहीं है, आई स्टार्टेड विथ वेरी स्मॉल अमाउंट. मैंने 1.5 लाख रुपए से शुरू किया था. जब तक 1 करोड़ तक रेवेन्यू नहीं गया, आई डिडंट टेक एनी डेट और समथिंग. तो जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप मैंने लोन भी नहीं लिया था, तो यू हैव टू एक्चुअली वर्क इन दैट कैपिटल. वो कंस्ट्रेन होता है. तो मेरे पास इतना रिसोर्स था ही नहीं ना कि मैं बर्न करूं या मैं फ्री डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स दूं. तो वहाँ पे कम्प्लीटली वो स्ट्रैटेजी वही था कि मतलब चॉइस भी नहीं है, मुझे इस कस्टमर ऑडियंस को ही प्रीफर करना है, मुझे प्राइस इतना ही रखना है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. उस वक्त काम किया. मे बी आज के टाइम में वो स्ट्रैटेजी सही लगे नहीं लगे, लेकिन उस वक्त मेरे लिए मतलब काफ़ी यूजफुल था. सेकेंड, व्हाट वी डिड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हम लोग बहुत मासी प्रोडक्ट्स में नहीं गए उस वक्त. जैसे मेरा जो बेस्ट सेलर है दैट इज़ लाकाडोंग टर्मरिक. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीमियम टर्मरिक ऑफ इंडिया. इट हैज़ अ हाई कर्क्यूमिन कंटेंट ऑफ मोर देन 5% होता है. 8-10 भी हम लोग क्लेम करते हैं. तो जो आप हाउस होल्ड टर्मरिक खा रहे हो उसमें 1%, 2% होता है नॉर्मली. उसमें भी मिलावट, अडल्ट्रेशन बहुत है. क्योंकि टर्मरिक, घी, हनी, ये 2-3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पे एक्चुअल में मिलावट है. तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा चेंज किया पैटर्न को. हम लोगों ने लाकाडोंग टर्मरिक में क्लेम किया कि इसमें कर्क्यूमिन काफ़ी हाई है, प्राइस ही है, लोगों ने लिया, अच्छा लगा, फ्लेवर अच्छा लगा, रिपीट परचेज आए. तो हम लोग को 100-150 में हल्दी नहीं दे रहे थे. हमारा लाकाडोंग टर्मरिक प्राइस ही था 250 ग्राम, 250 ग्राम्स 299 में. आज 325 का है. तो हमने वैसे ऑडियंस ही चूज़ किए थे कि हमें एक सेट ऑफ कंज्यूमर को ही टारगेट करना है. आप हमारे लिए ये प्रोडक्ट मार्केट फिट बोल सकते हो. तो हमने इस तरह इसको तो जो जिन ऑडियंस को आप चूज कर रहे थे वो आप प्राइस के वेरिएंट पे नहीं कर रहे थे? नहीं, प्योरली क्वालिटी. प्योरली क्वालिटी पे. तो हाउ डू यू इंश्योर कि जो क्वालिटी का डिमार्केशन जैसे जनरली D2C ब्रांड्स करते हैं, हाउ डू यू इंश्योर कि जो आप क्वालिटी का डिमार्केशन दे रहे हो वो कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा? तो हमारे केस में क्या था कि हम एक तो टर्मरिक में भी मासी में नहीं थे. एक बिल्कुल ही अलग ही वेरिएंट है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडियन ऑडियंस को ठीक से नहीं आ रहा है. सेकेंडली, वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ कर्क्यूमिन कंटेंट, सर्टिफिकेशन. ठीक है, हमारे हर बैच में प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है. जो हम क्लेम करते हैं वो हम दिखाते भी हैं कंज्यूमर्स को. थर्डली, वो जो फ्लेवर, एरोमा और जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो कंज्यूमर्स को भी दिखता है. जब वो यूज़ करते हैं दोबारा आके वो रिपीट परचेज लेते हैं. थर्ड, हमारे पास मॉडल क्या था कि आई थिंक विद इन दिस 7 to 8 years, आई स्टार्टेड इन 2017. टुडे इट्स ऑलमोस्ट 25 years. तो 7-8 साल में व्हाट हैव सीन कि मेरा सोर्सिंग कैपेसिटी और अच्छा हुआ है पहले से. जब शुरू किया था और आज के टाइम में आई कैन प्राउडली से दैट आई एम कनेक्टेड विथ मोर देन 5,000 और 10,000 फार्मर्स. सो अगर आप बोलो कि कुछ भी चाहिए A to Z, आप बोलो मुझे कल लॉन्च करना है, आई कैन प्राउडली से दैट आई कैन हेल्प यू लॉन्च. और आई कैन मतलब सोर्सिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. इतना काम किया है हम लोगों ने इसमें. तो एक थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. जो आपने सोर्सिंग वाली बात कही, तो जब हम नया काम शुरू करते हैं स्पेसिफिकली तो D2 मार्केट, हम जैसे अमेजोन ने गराज से शुरू किया तो बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर शुरू करते हैं. आपने ये सोर्सिंग उस समय जब आपने चूज किया कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही बेचेंगे और आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाएंगे, तब आप सोर्स करने के लिए माल को कहाँ से लाते थे, कैसे पूरा वो सप्लाई चेन मैनेज करते थे? तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया, जब मैं शुरू भी कर रहा था तो उस वक्त बीइंग नॉन इंडस्ट्री गाय कम्प्लीटली, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सेट था. दिल्ली में जॉब कर रहा था, यहाँ से देहरादून गया. तो बट आई बीन लकी दैट मेरे कुछ सेट ऑफ फ्रेंड्स थे, उनके फैमिलीज बिजनेस में थे. ठीक है. और जब मैं यहाँ से देहरादून गया तो किसान भवन गया वहाँ पे. तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फार्मर्स की लिस्ट ली, उनसे कुछ कनेक्शंस भी थे म्यूचुअली. वहाँ भी गया मैं, काफ़ी NGO से मिला. तो मैंने आई थिंक आप बोलोगे उसके बाद वायरल वेव के बाद 5 to 6 months कम्प्लीटली आई वाज जॉबलेस. मैंने ट्रैवल बहुत किया उस समय और कम्प्लीटली हिली एरियाज, उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा. तो जो मेरा पहला प्रोडक्ट था वो तुलसी लीव्स था. हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे लेवल पे कल्टीवेशन है, क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट है. मतलब वो प्योरली लूज लीफ है और वो नहीं है जो आप बाकी तुलसी ग्रीन टी मार्केट में पी रहे हो. बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी है, अरोमा बिल्कुल अलग है. तो वहाँ पे आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट ये मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी बहुत बड़ा यूज़र था उस समय. वो एक पर्सनल प्रेफरेंस भी था कि मुझे अच्छा लगा. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत सारे सैम्पल्स बनवाए उस वक्त.
हम लोगों ने कम से कम 1000 लोगों को सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उस वक्त 1000 भी हमारे लिए बहुत था, क्योंकि जो भी क्लोज फ्रेंड्स थे, सर्कल फैमिली फ्रेंड्स थे, उनसे हमने गूगल फॉर्म में कुछ रिसर्च वगैरह कराए और उनको सैम्पल्स बांटे, फीडबैक लिए। तो दिस इज़ हाउ वी केम अप विथ फर्स्ट 3 टीज, क्योंकि लोगों ने हमें ये बोला कि हम हर्बल टीज 3 रीज़न से ही पीते हैं, या तो वेट लॉस, या इम्यूनिटी, या रिफ्रेशमेंट। तो मेरे जो इनिशियली 3 टीज थे, जो पहले साल तक 3 SKU थे, वो तुलसी ग्रीन टी इम्यूनिटी के लिए था, पेपरमिंट टी था रिफ्रेशमेंट के लिए, और एक वेट लॉस टी हमने बनाया था। हनी क्यों लेके आए बाद में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यार हमें हनी की बहुत अच्छी सोर्सिंग मिली थी। मतलब हम ऐसे कनेक्ट हुए कि वो एक्सपोर्ट हो रहा था। तो और वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यार ये बेस्ट क्वालिटी हनी है ये। तो और सेकंड रीज़न क्या था कि थोड़ा अपना ऐसा भी लगाया हमने कि जो टीज कंज्यूम करते हैं हर्बल टीज, वो साथ में हनी भी लेते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता बट गया। हनी तो टेक्निकली ऑर्गेनिक ही होता है ना, हनी में कोई ऐसी एलिमेंट होते हैं जो हनी ऑर्गेनिक होता है, नहीं भी होता है। रीज़न क्या है, जैसे आप बी कीपिंग कर रहे हो, प्रैक्टिसेस आप काफ़ी जगह हो रहे हैं इंडिया में, राइट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से बीज जाके नेक्टर्स ले रहे हैं जिस प्लांट से ना, वो प्लांट्स कैसे सॉइल पे है, वो सॉइल कैसा है, वो सॉइल ही अगर कॉन्टामिनेटेड है, एग्जैक्टली तो फिर अंदर नरिशमेंट भी उसका कॉन्टामिनेट होता है। राइट। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे थे अब और अर्ली स्टेज में थे, तो किस तरह के चैलेंजेस आप यू यूज्ड टू फेस एंड देन यू कम आउट विद? मेरे लिए इनिशियल लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज कैश फ्लो था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेंडर से, खासकर ये सोर्सिंग वाला पार्ट इनिशियली, क्योंकि जब आप नए होते हो आप पे वो ट्रस्ट फैक्टर किसी का नहीं आता, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि आपको कोई क्रेडिट भी दे, वो साइकिल को मैनेज करने में सोर्सिंग क्वालिटी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हनी जब हम लोगों ने शुरू किया था, हमने, मुझे याद है कि 10-15 दिन में हनी बंद भी कर दिया था अमेजोन पे। किसी ने बहुत ही गंदा नेगेटिव रिव्यू दिया, बिल्कुल हनी जमा हुआ ऐसा फोटो डाल के, और वी वर स्केयर्ड, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें लगा यार खराब है, हनी की लिस्टिंग ही हटा दी। वो तो डाबर का भी जम जाता है। बाद में और R&D किया, सब कुछ किया, तब पता लगा हनी तो जमेगा ही जमेगा। हनी तो नेचुरली इट्स अ शुगर, हाँ। और हनी नहीं जमता तो प्रॉब्लम होती है, हनी तो जमना ही चाहिए। और लेकिन जैसे कुछ लोग कुछ लोग कहते थे कि हनी जमना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी प्योरिटी तभी पता चलती है, अगर वो सीधे बी हाइव से निकला हुआ है तो इट शुड नेवर बी बिकम अ शुगर। आप रेफ्रिजरेट कर रहे हो, कोल्ड एनवायरनमेंट में रख रहे हो, तो जमेगा ही। जमेगा ही जमेगा। हनी तो जमेगा, वो तो शुगर ही तो है, नेचुरली सुक्रोज फ्रुक्टोज। तो उस वक्त हम लोग भी नए थे, बाद में और R&D किया। तो यहाँ पे सोर्सिंग, फिर हमें पता लगा नहीं, जो सोर्सिंग हमारी पहली थी ना वही बेस्ट थी, वो तो सबसे अच्छी सोर्सिंग है। हम लोग वापस वहाँ पे गए, तो थोड़ा सीखने में भी टाइम लगा, 1-2 साल उसको सही करने में। रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि वो वेंडर्स आज भी हमारे साथ हैं। उस वक्त उन्होंने हम पे बहुत ट्रस्ट किया, छोटे क्वांटिटी से, मतलब हनी के तो ऐसे उन्होंने हमें इनिशियली, मुझे याद है कि हम लोगों ने 100-200 बोतल से ही शुरू किया था, उन्होंने ऐसे दिया कि ले जाओ, बिक जाएगा, पैसा देते ना, मतलब ऐसे लोग थे वो, इतना सपोर्ट किया था। तो वो चैलेंजेस के अलावा और कोई ऐसा आया था जिसमें आपको लगा कि हाँ एक रोड ब्लॉक आ गया है? ये तो हनी का एक केस था, बट आप तो रोड ब्लॉक बहुत आया बीच में, स्पेशली वो कोविड के टाइम पे आया था मेरे केस में। कोविड के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि वो एक मिस्टेक था हमारे एंड से कि हमें स्किन केयर भी जाना चाहिए। हम लोग ने स्किन केयर के कुछ SKUs लॉन्च किए, और हमें वो एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, और कोविड की वजह से हमने वो डिलीवर, हम लोग शिप ही नहीं कर पाए कभी, वो मेरा पूरा डेड स्टॉक गया। मुझे लगता है ये एक अलग D2C की ब्यूटी है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट। और सेकंड क्या था कि उसके वजह से आई हैड सर्टेन लॉसेस, मुझे अपना ऑफिस बंद करना पड़ा देहरादून में पूरा। मुझे दोबारा अपने घर के, फिर से अपने घर गया मैं, ऑफिस बंद करके दोबारा घर के प्रीमिसेस से फिर से शुरू किया, फिर से बड़ा किया। 1-2 साल फिर से रेवेन्यू फ्लैट गया, शार्क टैंक सीजन 2 में गया, नहीं हुआ, सीजन 3 में दोबारा अप्लाई किया, तो वो मेरा कम बैक था फिर। लेकिन चैलेंजेस आए थे, मतलब ऐसा स्टेज था जहाँ पे मुझे लगा कि शायद फर्स्ट बड बंद हो सकता है, या बंद होना पड़ेगा, या फिर मुझे जॉब में जाना पड़ेगा, ऐसे स्टेजेस तो आए थे। तो सीजन 3 तक का जो सफर था वो कैसा था, कैसे पहुंचे वहां तक आप? सीजन 3 ऐसा था जब ये मेरा फेज चला हुआ था, जहाँ पे आई हैड टू एक्चुअली क्लोज माई ऑफिस, मूव बैक टू माई होम एंड रीस्टार्ट अगेन, पूरा ब्रांडिंग चेंज। तो मुझे पता नहीं था शार्क टैंक कब आया, क्योंकि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि मैंने कभी TV में देखता भी नहीं था उस वक्त। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका छोटा भाई, कॉल्ड मी, जैन सिकंजी, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने बोला कि ऐसे भैया कि मेरा उसमें हो गया है शार्क टैंक में, एंड आई वॉज वेरी शॉक कि शार्क टैंक इंडिया में। बोला हाँ इंडिया में आ गया है, मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे एक पूरा रास्ता दिख गया कि सीजन 2 आएगा, मैं अप्लाई करूँगा। तो सीजन 2 में मैंने बहुत ही होप के साथ अप्लाई किया था। और तो जब आप शूट पे जाते हो उसके पहले 3-4 राउंड्स होते हैं, वो सारे क्वालिफाई हो गए थे, ऑफलाइन ऑडिशन भी अच्छा हुआ था। हम लोग शूट के लिए वेट करते रह गए, वो कॉल ही नहीं आया कभी 2 में। हाँ, सीजन 2 में। और ऐसा लगता था कल कॉल आएगा, वेट मेल देख रहा हूँ, नहीं आया।
फिर मैंने लिंक्डइन में रीच आउट किया काफ़ी लोगों को कि मुझे फीडबैक चाहिए। तो बाद में ये समझ में आया कि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव कैटेगरी। सेकेंडली रेवेन्यू उतना अच्छा भी नहीं था। तो सीज़न 3 में मैंने दोबारा अप्लाई किया, थोड़े चेंजेस किए, ब्रांडिंग में चेंज किया। एक मेजर प्रॉब्लम ये थी ब्रांडिंग में, जैसे हमारे 4-5 अलग अलग कैटेगरी है, पिकल, हनी, स्पाइसेस, तो सबके ना अलग अलग लेबल डिज़ाइन थे। क्योंकि जब शुरू किया था मैं सोचा ही नहीं था, वो खुद से फोटोशॉप से बनवाते थे दोस्त लोगों से। तो समझ में आया वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ब्रांड में। पूरा लोगो चेंज किया, ब्रांडिंग चेंज किया, अपनी मदर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लेके आया उसमें, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स है जो घर से शुरू हुए थे, पिकल और ये चाय मसाला, उनके फ़ोटोज़ यूज़ किए। रेवेन्यू डबल हुआ सीज़न 3 में। दोबारा अप्लाई किया, गए, लकीली सारे प्रोसेस क्लियर हुए, शूट में भी गए, डील भी मिली। तो जो मार्केटिंग वाला एलिमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं। तो जब आपने सारे अलग रखे थे, जब क्योंकि दैट वाज अगेन अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अ लर्निंग कर्व एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन डिड यू रियलाइज कि इसको एक यूनिफॉर्मिटी देनी है? किसी से शुरू में किया था सलाह कि मशवरा किया आई था? वॉज वेरी मच स्केयर्ड कि चेंज नहीं करना है। क्योंकि 3-4 साल हो गए थे, लोगो भी था, ठीक है, और लोग ले रहे थे जो ले रहे थे। मतलब मैं, क्योंकि ई कॉमर्स में भी होता है कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हो, आपने जो पैकेट्स देख लिया, आप अचानक चेंज करते हो सकता है कि आपकी फिर विजिबिलिटी खराब हो जाए, ये भी डर होता है। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि अगर मैं शार्क टैंक में जा रहा हूँ और अगर मैंने अपना वहाँ नया ब्रांडिंग दिखा दिया, और नया अलग-अलग लोगो कलर्स दिखा हैं। दिया, रातों रात वो मैंने कम्युनिकेशन मेरा चला गया ब्रांड का कि अब यही फर्स्ट बर्ड है। तो मैंने यही किया था। तो ये आपने अपनी तरफ से किया था, कोई इसमें वो नहीं की थी, किसी से सलाह वगैरह नहीं करी थी? मतलब मैं टच में था काफ़ी लोगों के, अपने जो कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फाउंडर्स हैं। लेकिन मुझे समझ में, मतलब मुझे फीडबैक आ गया था कि कुछ प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम यही है कि एक परसेप्शन होता है ब्रांड का, आप भी रिकॉल करते हो, इवन कलर पैटर्न से करोगे आप ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग पहला कम्युनिकेशन है जो आप कंज्यूमर्स को दे रहे हो। करेक्ट। वो मेरा क्लियर नहीं था, वो मुझे रियलाइज़ हो गया था ये। आपने काफी मतलब एक्सपेरिमेंट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टार्टेड एट 2017 एंड आप सीजन 3 वाज 2023, राइट। है ना? और उस दौरान तक आपने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। Right. कंसिडरिंग कि D2C ब्रांड से बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और आप तो एक्चुअली फूड एंड बेवरेजेस में हो, ये जो चैलेंजेस आप ओवरकम करते रहे, आपको लगता है कि वो चैलेंजेस बंद हो गए हैं या वो नए डायनेमिज्म के साथ फिर आई आते थिंक हैं, आप चेंज करते रहते हो? बंद तो नहीं हो सकते चैलेंजेस, और अच्छे अच्छे आते हैं। और ये हो सकता है कि विद टाइम आई थिंक एज अ ह्यूमन वी हैव चेंज्ड। आई मीन वी आर मोर यूज्ड टू इट इन फेसिंग इट, मोर इन अ मोर बेटर वे। अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहले पैनिक करते थे हम लोग, पहले कुछ भी होता था तो लगता था कुछ हो गया है। अब कुछ बड़ा भी हो जाता है, कुछ पीछे कुछ हो भी रहा होगा तो वो पैनिक नहीं आता, वो लगता है कि चलो क्या हो गया, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, हो जाएगा ठीक, शाम तक हो जाएगा, कल हो जाएगा, नया करेंगे। तो अब वो नहीं होता, पहले पहले वो डर था अंदर। और आई थिंक ये बिजनेस आपको सिखाता है विद टाइम। पेशेंस इज समथिंग यू लर्न विद यस, टाइम। अग्रीड। एक और जो सवाल मेरे दिमाग में कौन रहा है वो ये कि चूंकि ये अगेन D2C है, कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, फूड एंड बेवरेजेस है, बंदों की परसेप्शन एज एन कंज्यूमर की परसेप्शन और लाइकलीहुड काफ़ी चेंज होती रहती है। और आपने भी ये कहा कि जब आप पहला मार्केटिंग का प्लेट लेके गए और आपने कहा कि इसमें सबके कलर्स हैं, इनको चेंज करो, अब रिटेंशन भी आता है कि जो कंज्यूमर बराबर खरीद रहा है, क्योंकि आप मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हो। तो ये जो ओवर डिजिटल इन्फ्लुएंस्ड कंज्यूमर है, इसको रिटेन कैसे करते हो आप? हमने बहुत ही स्ट्रेटजिकली इसमें काम किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे बेस्ट सेलर्स हैं, जो अच्छे जा रहे हैं, इनफैक्ट जो नए लॉन्चेस हैं, जो भी हमारे नए लॉन्चेस हैं, जब भी होते हैं हम सैम्पलिंग्स करते हैं अच्छे से। एक तो सपोज मेरा बेस्ट सेलर है टर्मरिक, तो टर्मरिक के साथ अगर मैं सैफरन लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं उसके ऑर्डर्स के साथ हमेशा हम 1-2 सैम्पल्स देते हैं कंज्यूमर्स को, जिसको अच्छा लगेगा वो आके लेता है। एक तो हम लोग ये करते हैं। बहुत ही हैविली हमने अभी तक बर्न नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ मेटा एड स्पेंड, लेकिन रिटेंशन है, उस पर हम लोगों ने काम किया है। हम कंज्यूमर से फीडबैक भी लेते हैं रेगुलरली कॉल्स करके, और ये हमारा एक कंटिन्यूस पैटर्न है। एंड कोई भी नया लॉन्च है, इवन जो हमारे पुराने कंज्यूमर्स हैं, तो बहुत ऐसे कंज्यूमर्स हैं आई थिंक जो मेरे साथ 2017 से हैं। मतलब उनका ऐसा है कि हर महीने उनको चाहिए, जो एक पैकेट टर्मरिक ले रहे थे वो आज एक बार में 4-5 लेते हैं फिर आके। तो हमने उनके लिए प्रॉपर एक कस्टमाइज कोड्स भी बना के रखे हैं, उनको 1 साल का कोड्स देते हैं अपने एंड से। ये सब थोड़ा पर्सनल टच देते हैं। तो आप मतलब कंज्यूमर के साथ अपना क्लोज कांटेक्ट बना के रखते हैं। तो जो भी नया बनता है उसके साथ भी फिर आप यही करते हैं? हाँ, उनको ट्राई करते हैं कि वो भी कन्वर्ट हो जाए उस। तो जितने भी ये सैंपल्स जाते हैं, ये नए पुराने सबको इकट्ठा पहली बार में जाते हैं? तो जो पुराने कंज्यूमर्स हैं उनको तो जाते ही, कोई भी नया लॉन्च होता है उस केस में जाते ही जाते हैं। ये काफ़ी एक रिफाइंड स्ट्रैटेजी है, कंसिडरिंग कि आप देहरादून से हैं और हरिद्वार में पतंजलि का खुद का इतना बड़ा
फैक्ट्री है, आपके तो सबसे बड़ा डायरेक्ट कंपटीशन तो उन्हीं का ही है, क्योंकि जो जनता है वो तो लेकिन पतंजलि आई को थिंक बहुत। यहाँ पे भी प्राइसिंग सेगमेंट अलग है, ऑडियंस अलग है, टारगेट सेगमेंट ही हमारा अलग है। दे आर मोर इनटू मासी सेगमेंट। उनके हनी आई थिंक 200, 250, 300 रुपए में आते हैं। हमारा हाफ के जी 400, 500 रुपए का है, 1 kg अप्रोक्स 1000 के आसपास है। तो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे काम करें, इट्स मोर लाइक नो फार्म टू फ्रेश हनी। सो वी से दैट इट्स नॉट पैस्चराइज्ड। ये बिल्कुल मिनिमल प्रोसेसिंग है इसमें, आपको जो फ्रेश हनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है। तो जो आपकी जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर, वो कैसी है? हमने ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर जब से शुरू किया है। इट्स बिन ऑलवेज मतलब 2x ही हुआ है शुरू से लेके अभी तक की जर्नी में। और ये पूरा अभी इंडिया थोड़ा कवर करता रैपिड हुआ है इधर इस टाइम, इस 5 इधर 5-6 महीने में 7 to 8x भी हुआ है। तो ये पूरा इंडिया कवर करते हो जस्ट थ्रू मार्केट प्लेसेस? यस। तो यू डोंट सप्लाई बाय योरसेल्फ, कोई वेबसाइट नहीं है? वेबसाइट है हमारी। वेबसाइट हमने आई थिंक 2021 में शुरू कर लिया था हम लोगों ने। शुरू के 2-3 साल नहीं थे वेबसाइट पे, थोड़ा लेट आया उस पर, क्योंकि बजट भी नहीं था और हम लोग चाहते नहीं थे उस वक्त कि हमारे कंज्यूमर डाइवर्ट हो, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्स ही नहीं थे कि खुद के कंज्यूमर सपोर्ट की टीम है, मतलब उतना मैनेज करने का बैंडविड्थ नहीं था उस वक्त। तो वेबसाइट है, अभी हो गए काफ़ी टाइम हो गया वेबसाइट में। तो ये शार्क टैंक 3 के बाद हुआ? वेबसाइट पहले हो गया था। पहले ही हो गया था। तो उस तरह से अब आप कंज्यूमर का बेस पूरा पैन इंडिया कवर अभी कर हम लेते लोग हो? क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, जेप्टो पे ऑलमोस्ट डन। विद इन अ वीक और 10 days विल बी देयर। ओके। ब्लिंकिट में वी आर कमिंग इन नेक्स्ट 2 months। तो आप पूरी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो आपका फोटे शुरू से रहा है, आप उसको पूरा उसको मैंने यूज़ किया। मुझे लगता है अभी भी मैंने वो पूरा यूज़ नहीं किया है। अगर मैं वो पूरा यूज़ कर लूँ तो आई थिंक देट्स अ लॉट टू अचीव। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, कंज्यूमर के सर्टेन सेगमेंट्स होते हैं। अब आपके पास तो ऑर्गेनिक में काफी ब्रांड्स हैं, और मतलब एज इन वैरायटी है, और उसमें सेगमेंटेशन भी आप करते ही होंगे। तो विद इन इंडिया कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा आपको लगता है कि यहाँ चलता है और यहाँ पे मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहना चाहिए या नहीं करना तो चाहिए? हमारे लिए हमने ये देखा है कि हमारे लिए मुंबई, पुणे, वेस्ट और इनफैक्ट साउथ में हमने थोड़े वहाँ पे बहुत सारे रैंडम फीडबैक्स भी लिए, कुछ हमने सर्वेस भी कराए, और जो हमने अपने जर्नी में देखा 6 से 7 साल में, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट क्वालिटी। प्राइसिंग में इतना डिफरेंस नहीं आता बैरियर में, लेकिन अगर आपके एक भी बैच में आपने ध्यान नहीं दिया, इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो आई थिंक वो आपकी कंज्यूमर लॉस है पूरा। वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो क्वालिटी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ कोर्स। मतलब यू कैन मेक योर फर्स्ट कंज्यूमर, आप एड के थ्रू कर लो, आप पुश मार्केटिंग कर लो, लेकिन रिटेन तभी होगा जब क्वालिटी है। और आई थिंक फर्स्ट पार्ट सबसे ज्यादा एम्फेसाइज रिटेंशन पे करता है, क्योंकि दैट्स वेयर हमारा होता है कि जो फर्स्ट टाइम आ जाए उनको अच्छा लगे, वो कंटिन्यूस लेते रहे। ऑल्दो वी डोंट हैव दैट मच SKUs, ओनली 10 से 15 SKUs हैं अभी। तो हम लोग प्लान ही यही कर रहे हैं कि हमारा प्लान ही यही है, जब QCOM पे आ रहे हैं, कि विल ब्रिंग मोर एंड मोर SKUs अभी आने वाले टाइम में, जिसमें हमारा आइडिया ये है कि आपको जो भी घर के राशन के लिए चाहिए, बीट दाल, बीट पल्सेस, बीट घी, ऑयल्स, सो दे आर प्लानिंग टू कम। आपने एक चीज और बताई थी कि जो ग्रोथ है कंज्यूमर की वो 7x रही है। अट्रीशन का रेट क्या रहा है? हमारे केस में बहुत कम है, इट्स बिन वेरी लेस। एंड इट्स यू गिव द क्रेडिट टू द क्वालिटी दैट यू गिव और द प्राइस? आई थिंक क्वालिटी। प्राइस में वी कैन वर्क अपॉन, आई मीन अभी हम लोग और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द स्केल। वो हमने किया भी है बहुत सारे केसेस में, जैसे हनी में किया है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में किया है। लेकिन आई थिंक क्वालिटी इज़ द की फैक्टर। जब अभी हम लोग जो भी नए लॉन्चेस कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत सोच के कर रहे हैं अभी कि हमें वहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे थोड़ा बहुत वाइड स्पेसिंग है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, किस प्राइस में। वहाँ पे अब हम लोग थोड़ा अच्छे से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट, सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे प्राइस सेंसिटिव होगा। सपोज पल्सेस है, पल्सेस आई कैन नॉट सेल इन 400 to 500, उसका एक प्राइस सेगमेंट है, वो उसी प्राइस सेगमेंट में रहना चाहिए। और ऑर्गेनिक का तो एक प्राइस सेगमेंट है ऑलरेडी, चाहे आप तो डीमार्ट से लें, चाहे डबल 2x 3x तो नहीं कर सकता। हाँ। तो आई हैव टू इन दैट सेगमेंट वर्सेस कि मैं उसमें बेस्ट क्या दे सकता हूँ। और सेगमेंटेशन में ही एक चीज और भी होती है कि जब कंज्यूमर किसी चीज को ले रहा होता है तो वो स्पेसिफिकली आपका टारगेट ऑडियंस टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो क्वालिटी कॉन्शियस है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि किसी ने बोला हो या कंप्लेन करी हो कि आपका जो लिखा हुआ है वो वैसा नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे हुए हैं ये तो पैस्चराइज ये नहीं ऐसा हुआ नहीं है आई थिंक, लेकिन हाँ इनिशियल डेज में हनी में हमारे साथ हुआ था, ये जो क्रिस्टलाइज जमने के केस में हमें कुछ कंप्लेंट्स आए थे। लेकिन बाद में 2-3 साल में उन कंज्यूमर्स ने कॉल किया और उन्होंने बोला सर अब तो आपका हनी जमता नहीं है। मतलब जो कंप्लेन था जमने का कि जम क्यों रहा है, वो इस पे कन्वर्ट हो गया कि अब जम क्यों नहीं रहा है, पूरा उल्टा हो गया। तो ऐसे केसेस हुए हैं।
पिकल्स में एक दो बार हुए हैं जहाँ पे क्योंकि पिकल इज़ वेरी मच टेस्ट ओरिएंटेड, जो नॉर्थ में टेस्ट है आई थिंक इट्स South में नेवर नहीं इन है। साउथ में, बिकॉज हमने थोड़ा ड्राई रखा था तो वी गॉट अ फीडबैक फ्रॉम साउथ कि हमें थोड़ा ग्रेवी वो ज़्यादा पसंद ज़्यादा oily है, होना चाहिए। ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। अब व्हेन वी केप्ट मोर ऑयल तो थोड़ा कंप्लेन आने लगा, ये तो बहुत ही ऑयली, इट्स नॉट हेल्दी। तो ये सब थोड़ा करना पड़ता है, मे बी ट्राई। बट आप क्या रेगुलर इनके लिए सर्विस रन करते हो? रेगुलर तो नहीं, आई थिंक 5-6 महीने में हमें एक अच्छा फीडबैक आ जाता है हमें करना क्या है। तो बेसिकली आप फीडबैक को मॉनिटर रेगुलर करते हो, और अगर कोई कोई चैलेंजेस आते मेजर अगर शिफ्ट है टेस्ट में या पैकेजिंग में प्रॉब्लम है वो दिख जाता है। लेकिन आई थिंक अगर किसी ने एक ने बोला तो आई थिंक उस एक की वजह से पूरा पैकेजिंग या कुछ पूरा वो चीज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहीं पे कुछ मेजर प्रॉब्लम है पूरे एक बैच में तो वो तो आई थिंक वो पता लग जाता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स अगर टेस्ट को लेके आ रहे हैं या फिर थिकनेस को लेके आ रहे हैं, क्वालिटी को लेके आ रहे हैं, तो आपको जजमेंट आ जाता है कि नो यू नीड टू चेंज इट, और इसमें चेंज करना है क्वालिटी में। आगे का क्या विजन है? आगे प्लान ये है कि अभी फटाफट क्यू को हम अच्छे से करना है, और हम लोग ऑफलाइन में भी आ रहे हैं धीरे धीरे स्टोर्स में, फर्स्ट बर्ड के ग्लोबल भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अभी आने वाले 1-2 साल में फर्स्ट बर्ड को एक हाउस होल्ड ब्रांड बनाना है अच्छा सा, और होपफुली विद इन 1 or 2 years मेक इट 100 करोड़ ब्रांड। ऑफ कोर्स। इस पूरी 7 साल की जर्नी को अगर आपको किसी को एक एडवाइस देनी है, एस्पायरिंग D2C ब्रांड्स जो आ रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, आप इस पूरी 7 साल की जर्नी में से वो क्या एक एडवाइस आप उनको देना चाहोगे कि जो वो माने और उसके बाद फिर वो आई शुरू थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट स्टेप लेना। बहुत लोग ले नहीं पाते, लेते भी नहीं है। मैंने बहुत ऐसे फाउंडर्स भी देखे हैं, अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं जो मेरे पास आते हैं कि हमें स्टार्ट करना है, और पिछले 2-3 साल से वो स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्कशन होता है, R&D होता है, स्टार्ट नहीं करते। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट यू स्टार्ट, वो पहला स्टेप लो, बाकी प्रोसेस आपको सिखाई देता है, आप सीख जाओगे धीरे धीरे, लर्निंग्स है लंबी। सेकेंड, आई थिंक जिसने स्टार्ट कर लिया है तो कंसिस्टेंट रहना भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप से झूठ बोलो, क्योंकि एक मिथ ये भी होता है कि हर किसी को अच्छा लगता है कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरा ब्रांड सबसे अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये मिथ होता है। मतलब मैंने शुरू किया, फैक्ट कुछ और है, फैक्ट है कि अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मान के चलूँ कि नहीं मैं ही अच्छा हूँ, फर्स्ट बर्ड तो बहुत अच्छा है, तो वो आई थिंक वो वैसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा ओपन टू फीडबैक भी होना चाहिए, जहाँ पे चेंजेस करने वाला चेंज करो। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे केसेस में भी ऐसे हुए हैं कि शायद पता नहीं फर्स्ट बर्ड कितने बार बंद हो जाता, ऐसा हुआ है। मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि जॉब लेना पड़ेगा, कभी फैमिली से भी आए कि शायद कर लो अब जॉब। आई थिंक मेरे केस में ये था कि थोड़ा फैमिली सपोर्ट अच्छा था, थोड़ा मैं जिद्दी था अंदर से कि नहीं करना ही है, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा बीच में, अगर शुरू किया तो करूंगा अच्छे से। और मुझे ऐसा लगा भी था कि शायद मुझे जॉब भी ना मिले, सही बोलो तो इतना टाइम हो गया है, तो मुझे करना ही था। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी शुरू किया है, आपको नहीं पता कि कल आपके पास क्या आ जाए। मेरे साथ तो यही हुआ है, आज जो हुआ है आई थिंक इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड, जस्ट बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई हैव गिवन 100%, आई बिलीव आई हैव गिवन ओनली 20 to 30%। वो एनर्जी अभी पूरा दिया नहीं है, बाकी ये देना, और मैं चाहता हूँ कि वो दूँ, इतना टाइम हो कि 5-6 घंटे सोने को मिले। आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट। बट जिद को जगा के रखना है। हाँ, क्योंकि वो फील आता है कि अभी नहीं है वो 100% अभी भी। बेस्ट ऑफ लक मित्रेश। आई मीन आई थिंक दैट्स अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन वी जस्ट हैड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन दिस जर्नी ना लास्ट 7 to 8 आई मीन देयर हैव बीन सर्टेन फ्रेंड्स जिनके ब्रांड्स एक्चुअली में बंद भी हुए हैं। तो मैंने इसलिए बोला कि बंद होना इट्स नॉट आई नॉट से इट्स अ बैड थिंग। कभी एक कॉल होता है, आपको लेना पड़ता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंटिन्यू कर पाओ। जैसे MBA कॉलेज में ना बहुत सुनाते हैं कि जैक मा ने इतने सारे फेल्स किए, देन ही बिकम जैक मा। तो आई थिंक फेलियर से तो वैसे भी नहीं डरना चाहिए। अब आई थिंक जो मुझे आपकी एक खास बात लगी कि वो जिद बहुत जरूरी है, और वो जिद ही आपको आगे लेके जाती है। तो आई थिंक आई वुड मेरी पहली जब मैं एक्चुअली बिजनेस में आया, पहली जॉब गई थी, तो ऐसा नहीं था कि जॉब नहीं मिलती, जॉब तो मिल ही जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं करूँगा बिजनेस। क्योंकि वो जॉब गई, मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पे दिया, मैं बिल्कुल यंग था, कोई सेविंग नहीं किया मैंने 2 साल। जब वो जॉब गई तब मुझे फील हुआ कि मैंने 2 साल किया क्या है, ना मैंने सेव किया, बस सुबह आता था, रात को जाता था, वीकेंड में पार्टी किया। तो एक्चुअली वो मुझे अपना 2 साल का पीरियड अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मैं बिजनेस ही करूँगा। बिजनेस सुनने में अच्छा लगा, ग्लैमर, लेकिन एक्चुअली में ग्लैमर होता नहीं है। जब मैंने शुरू किया मैं बहुत नया था, जो मेरे साथ थे वो बहुत नए थे, हमारे फिक्स कॉस्ट इतने हाई थे वायरल वेब में। हमने ऑफिस ले लिया, एम्प्लॉयज़ रख लिए, पैसे आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं, ना मेरे पास सैलरी, ना इतना 2 साल तक ऐसे चलाया कि बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये भी सही नहीं है। तो वहाँ से वो सीख के फर्स्ट बर्ड किया। तो फर्स्ट बर्ड को मैंने लंबे टाइम तक बूट स्ट्रैप पे रखा है। जब तक
मेरे सारे फिक्स कॉस्ट मेरे Zero बिजनेस down नहीं हो गया। खुद से उसको मैनेज ना करे। मैंने वो मिस्टेक यहाँ पे नहीं किया। तो इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी था। हाँ, यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन लेके मैं सेट था कि मुझे पता था कि मैं पैनिक नहीं करूँगा 1-2 साल तक, इसको लंबा ही चलाना है। नहीं तो एज अ ग्रोथ देखोगे तो आई थिंक आप बोलोगे इट्स बिन स्लो तो है, क्योंकि ब्रांड्स तो आजकल 2-3 साल में भी इतना कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला जो हम लोग लेकिन आई वाज कहते वेरी हैं। मच क्लियर कि ये मेरा लंबे टाइम तक है। एग्जैक्टली, अब बिजनेस है तो फिर उसको तो उतना चलाना है, बीच में तो रोकने का कोई फायदा नहीं। ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया। Right. आई थिंक आपकी जो इंस्पिरेशन है और आपने जो सोचा हुआ है, आप उस पर अडिग हो, और ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हो तो यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट डूइंग इट। सो यू जस्ट हर्ड मित्रेश एंड इट वॉज सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. His journey with First Bud Organics, from launching a purpose-driven brand to navigating the challenges of the D2C space, ये एक अलग reflection देते हैं. It's a true reflection of the power and the passion and the perseverance. You heard him directly as what he just mentioned. It should be your will to continue growing yourself. Hearing about his hands-on approach to scaling through Amazon, Flipkart, and other digital platforms have been invaluable. And especially for aspiring entrepreneurs, if you're thinking to carve yourself into Indian market and create a path, you should follow the instructions and the advice that Mithresh just gave you. And for our listeners, if you're looking for a pure organic and high-quality products, and you have thought of organics, then it is the First Bud Organics that you should go for. Mithresh, thank you so much for sharing your stories and the lessons, and wishing you all the continued success in the future. Thank you so much. Thank you. Thank you.